I felt that the story moved a little forward, not too much. Obviously flashbacks में हमें पता चल रहा है कि क्या हुआ था. नादिया ने लास्ट टाइम प्रिडिक्ट किया था कि ये खुद भागना चाह रही है लड़की, और हमने कहा था कि नहीं, जब वो आता है उसके वो हक महर देने के लिए, we thought that he's come to take her back, but actually I think इसी के साथ इसने प्लान भी किया. तो मैं जीत गई. हाँ, आप मैं सिकंदर. So मैं जीत गई. So that was the case. ठीक है, she कह रही है ना कि 3 महीने से मैं एक क्या कहाँ फंसी हुई थी, तवे पे बैठी हूँ, तवे पे जलते तवे पे बैठी. हाँ. I love everything she didn't love about it. I like the darkness because it is a, but did you see that fall from the cycle? वो बहुत ज़बरदस्त. हाँ. Cycle fall amazing. That was meaning I actually thought that they actually must have been, but I actually thought that they must have fallen and they kept that. हाँ, हो सकता है. मुझे ये लगा, you know, that was amazing. The tension, I think Asma Abbas का episode था ये वाला. I think she did an excellent job in this. कैसे वो क्या कहते हैं उसको बचा रही है अपने बेटे को कि बदनामी ना आ जाए. पहले नौकरानी को कर, you know, like I loved it. मैं तो दे दिया था. 3 thumbs up जी. महीना जी की तरफ. Simple, but it kept you engaged totally. महीना जी. So this was exactly my question to myself. मैंने कहा जब निकाह हो रहा होता है तो हम पेपर वर्क और विटनेसेस और ये सब कुछ होते हैं, लेकिन तलाक आप वर्बली दे सकते हैं. So then someone told me, but this also has to be corrected, that according to the Sharia, you don't even need paperwork for a nikah also. You just have to have 2 witnesses. हाँ, paperwork तो बाद में आया है. हाँ. Paperwork तो बाद में एक. So that is the reason why this तलाक. लेकिन अब because जब law आ गया ना, तो उसकी वजह से ये confusion आई है. लेकिन I think it would be very nice if we can ask Zafar Saab himself, because I can't believe that he would write. क्योंकि वरना आप सारी जिंदगी ऑन पेपर उस शख्स की बीवी रहेंगे. जब तक मैंने कहा जब तक ऑफिशियली आपकी तलाक नहीं होगी, आप उसकी बीवी रहेंगे आईडी कार्ड पे. तो नादरा में हर जगह इन्वॉल्व हो गया. हर जगह. देखिए वही मैं बात कर रहा हूँ, हमें इसको अलग रखना पड़ेगा, शरिया को और लॉ को अलग. This is Sharia, and I think this is the topic that he has taken, picked up. That's what he's done. But I'm loving it. Like I said, not a lot has happened, but whatever has happened was very engaging. And again, you see the marriage between the 2 writers and directors. जो scene लिखा गया है, how he's executed it and everything. The Asma Abbas वाला scene जब वो maid servant को घर से निकाल रही होती है, meaning वो उसका भी दिमाग देखें कैसे चल रहा है, because ये he's standing for elections or whatever it is. इनकी एक इज्जत है उस गांव में. तो मेड सर्वेंट को वो उसके कमरे में जाके मिठाई रख लेती है ना, तो कहती कहाँ से आई, गेट आउट. बिकॉज कहती है कि कल वो देखेगी कि किसी ने खाया नहीं, तो शी इज़ गोइंग टू से वो तो है ही नहीं घर पे, उसको निकाल देती है. फिर उसकी दोस्त का फ़ोन आता है, एंड दैट सीन वाज सो ब्यूटिफुली शॉट, because you can, it's a close up on Gohar, and they are standing in. I just thought that was such a beautiful shot. Then जब दोस्त का फ़ोन आता है तो उसको भी कह देती है ना, meaning I just thought that was so, it was a very interesting angle to this whole thing ना, कि वो बचा भी रही है और उसको बुरा भी लग रहा है, उसको meaning कोस भी रही है ना. She was such a, I think this whole episode, to me this episode was hers. I really, yes, agreed. She did a fantastic job. Fantastic. Their journey was very good. She's right, the same couple. I loved them then, I love them now. अब let's see how it progresses. इनका कितना वो होगा, how much will they be involved in all of this, and the way it ended, कि they're all sitting, पहले जब नॉक होती है वहाँ डरते हैं, और जब चारों होते हैं फिर नॉक होती है. and let's see, you know, obviously इतनी जल्दी तो नहीं पहुँचा होगा, लेकिन हो भी सकता है. You know, there's so it was very engaging. It was of course the acting level, I think that's his forte. He just gets such amazing performances out of people. So for me again, I am judging both of them, because दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं. Everything just works beautifully. So 9 for both of them. 9 for direction and 9 for writing. मेरी तरफ से भी 9. महीना जी.
एक सटल्टी है उसकी परफॉर्मेंस में जो हमने काबली पलाव में भी देखी, और आई थिंक एक ठहराव है काशिफ की डायरेक्शन में कि कोई बात होती है, देयर इज़ अ साइलेंट मोमेंट और फिर एक एक्नॉलेजमेंट होती है. आई थिंक शी डज दैट वेरी वेल. बाल उसके बिखरे हुए हैं, ऑफ कोर्स शी इज़ हार्डली यू नो, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेकअप है. काबली पलाव में तो आई थिंक सिर्फ 2 सीन्स में उसने मेकअप किया था. बट शी डिडंट डिसअपॉइंट अस देन. बीच में एक ईद का प्ले आया था जो हमने देखा था, and we were not too impressed, but we know she can perform and she's not disappointing us now, so 9. ऑडियंस की बात की जाए तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 23,421 हुए हैं, और सबीना फारूक के हिस्से में मंजोगी से आए हैं 1,928% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं. नॉट बैड. अगर आप ये ड्रामा देखेंगे तो वोटिंग भी सबीना फारूक की बढ़ जाएगी. मरीना जी, So they've said everything about Gohar. मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा था कि जब मौलवी अजान दे रहा होता है और वो उसके पास आता है बिकॉज पूछने के लिए कहाँ गए हैं वहाँ, बिकॉज वो उसमें उस वक्त वो वाली एनर्जी थी कि वो अजान को भी इंटरप्ट कर लेगा. वो जैसे रोका हुआ मुझे लगा अब आपको लगे है कि ना? रुकेगा, रुक I गलत thought हो that- जाएगा. That was very Very good. It was so. Yeah, baby, you rock, man. Very well done. I would say 10. 10. मैंने 9 देखे तो जूसी तो नहीं कर दी. अतीका जी, सफर मेराज. नहीं तो ऑफ कोर्स कहानी इज़ फैंटास्टिक. उसका ओवरऑल अभी तक सेकंड एपिसोड में ट्रैक भी बहुत अच्छा चल रहा है. थोड़ा सा कहानी आगे बढ़ी है. पहले मेरा सवाल था क्यों भाग रहे हैं, फिर जब वो पहुंचती है वहाँ घर पे तो कहती है कि कौन सा मियाँ, उससे तो मुझे तलाक दे दी और इससे मेरी शादी करा दी. सो यहाँ पे एक थोड़ा सा बिटरनेस आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि शायद बिकॉज ऑफ दैट बिटरनेस शी सेड टू हेल विद हिम, मैं भाग रही हूँ. शायद मुझे ये लग रहा है. तो उस हवाले से अच्छा फिर बिल्ली वाला भी खुल गया. हाँ, वो जो बच्ची है ना, की थी, वो मर जो मुझे गई. पहली वो एपिसोड तो में बिल्ली फ्लॉ मरी है उसकी. वो भी बात खुल गई. तो फर्स्ट एपिसोड में जो क्वेश्चन मार्क्स थे वो सेकंड एपिसोड में खुलने शुरू हो गए. एंड ओवरऑल मोमेंट्स बड़े अच्छे लिखे हुए हैं. डार्क एंड ये जो एक मूडी टाइप लाइटिंग हुई है इधर इज़ बिकॉज ओवरऑल आई थिंक काशिफ निसार की कोशिश है कि एक ऐसा इसको एक डीप डार्क सॉर्ट ऑफ एक मूड दें ताकि जो सब्जेक्ट मैटर डिस्कस हो रहा है इस ड्रामे में सारा उसमें भी फोकस उस पे रहे. उसको इन्हांस किया जाए. बिकॉज यही चीज़ अगर आप जैसे हम का स्क्रीन या ARY का नादिया स्क्रीन होता है ना, बत्तियाँ लोग सो भी रहे होते हैं, लैम्प ऑन होता हाँ है. जी, वो तो टू मच. मैं इतना कहती हूँ भाई लैम्प बंद कर दे. नहीं वो कहते हैं ब्राइट रखें. I think this subject would have maybe have lost a little bit of its essence if it was like a bright screen. That's he's probably playing with light. 2 बार बढ़ा देते बस. 2 बार. But वो he's playing with mood के साथ खेल रहे हैं. तो उस हवाले से आई लाइक द फैक्ट. एंड ये मैंने पहले एपिसोड में बोला कि ये एक जो इन्होंने एक टोन दिया और एक कलर ग्रेडिंग की है जिसके फिनिशिंग दी है, इससे बहुत इम्पैक्ट आ रहा है. तो आई लाइक इट वेरी मच. राइटिंग एंड राइटिंग जफर मिराज, it's 10.